डेलिकेट का सिनोनिम होता है फ्रेजाइल, बिकॉज सिनोनिम बहुत कमज़ोर. ओके, लुक ओवर मीन्स एग्जामिन हो सकता है. सो मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं. एंड दिस इज़ द these can lead to that single company such things no. A market monopoly refers to a situation where a single company or firm dominates a particular industry or market. Correct. Monopolies can emerge naturally as a result of technological advancement or unique market conditions. A market monopoly तो B या फिर F तो नहीं, तो B फर्स्ट होगा यहाँ पे. So that could be possible. and बाकी का मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं बिकॉज इसको लास्ट में करेंगे. Evelyn or her sons has yet to decide on the destination for their. Has है, so we can't say their. I'll be embarking on a journey to Europe in a little weeks. In a little weeks? No. ओके, इसमें क्या करना है? रॉन्गली स्पेल्ड और इनएप्रोप्रिएट है. ओके, सो वी कैन ओनली होप दैट द लीडर इग्नोर्स टू लिसन टू अ साउंड एडवाइज and governs with the benefit of knowledge. Sound advice, I'm not sure. Hotel rooms are the less expensive in the off season. Hotel rooms less expensive होगा, इज़ तो कभी नहीं आएगा. सो आर लेस एक्सपेंसिव, आर द मोर एक्सपेंसिव इन द ऑफ सीजन. द गवर्नमेंट प्लान्स होना चाहिए यहाँ पे, और प्लान भी हो सकता है. सेवरल पेजेस हैव बीन टीयर. नो. ओके. द शेफ चूज टू एड अप अ लिटिल सॉल्ट टू द स्ट्यू टू मेक इट टेस्ट बेटर. स्ट्यू. Chose up to add up stew. He has pulled extraordinary feat, I think, because of the overwhelming inquiries for the model. The brand has advanced its release date. So because of the overwhelming inquiry फॉर द मॉडल होना चाहिए यहाँ पे. इंक्वायरी एंड एंक्वायरी में भी डिफरेंस होता है. सो कांट श्योर. सो डेस्पाइट द रिसेंट लव द कंपनी हैज़ कम अप विथ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रोडक्ट. कम अप विथ ओके, आई थिंक कम अप विथ ठीक है, बिकॉज द कंपनी हैज़ कम अप एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी. नो, it's fine. We had to mortgage our house to start my dairy business. We had to mortgage. We had to. Yes, no correction required. We had to mortgage. He is an expert martial art. He is an expert in martial arts. Yes, this would be fine. She यूजेस होना चाहिए ना यहाँ, बिकॉज आपका और तो कुछ जा नहीं रहा है यहाँ से. सो दिस कुड बी फाइन. आई एम सर्चिंग फॉर अ डैश स्टिक. आई एम सर्चिंग फॉर अ लॉन्ग स्टिक. हो सकता है बूस्टेड स्टिक तो कुछ नहीं होगा. elongates guide stick, attract stick, no. Long stick we can say. I dash all the required parameters. I verifies और I verifies तो कभी नहीं होगा ना, checked होगा यहाँ पे. Okay, well, shake the bottle well before opening. Okay, tears welled up in her eyes. The well of the village are not distributed equally. Well कुआ भी होता है. So first and second, if I say first and second अगर हो रहा है तो third, tears welled up in her eyes. Because shake the bottle well before opening. Shake the bottle well before the opening. तो first है the well of the village. बट द वेल ऑफ द विलेज कैसे हो सकता है? वेल्स होना चाहिए था. आर आ रहा है यहाँ पे. सो सेकेंड कुड बी रॉन्ग ना. द टीयर्स वेल, आई एम नॉट श्योर.
very much in the house is on the corner, so you can't miss it. What did you miss the most when you live abroad? After several missed, he finally managed to hit it after several missed. Okay, so market monopoly refers to a situation where a single company or firm dominates a particular industry or market. सिंगल कंपनी, सो बी के बाद में आपका डी बनना चाहिए, दैट सिंगल कंपनी कंट्रोल्स द सप्लाई एंड प्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, गुड्स एंड सर्विसेज, सच थिंग्स कैन हैव अ नेगेटिव. बी जो होना चाहिए वो डी मतलब डी होना चाहिए, सेकेंड जो होना चाहिए वो डी होना चाहिए, बिकॉज यहाँ ग्लेट्स monopolies to protect consumer welfare. Monopolies can emerge naturally as a result of technological advancement on unique market condition. These can lead to EF का एक पेयर बन रहा है because market conditions. So these can lead to higher prices for consumer, reduced innovation and lack of healthy competition. Such things can have a negative impact. Yes, C and so A होना चाहिए लास्ट में. So B, D, if I say B and D, that single company controls the supply and pricing of goods and services, then naturally as a result of technical unique market conditions. Sorry, FE होना चाहिए ना, FE. So F होना चाहिए थर्ड, एंड देन उसके बाद में होना चाहिए F I follow, then E, then CA. These can lead to consumer reduce. Okay, so fifth 1 2 3 4 5 fifth C होना चाहिए, and then sixth होना चाहिए A. Yes, this could be fine, and I'm not sure about it. According to the passage, what did the boys find when they opened their packages? So okay, Carl and Philip opened the package and found the same thing in each, a beautiful book with white pages. One book each with pure white pages, as pure white and beautiful as the snow. Okay. Okay. Why did the fairy appear before the boys? The fairy came again to the boys. Why did the fairy appear before the prize? Okay, I have bought you each a new book, she said, and will take back the others to father time who spent them to you. May I not keep mine a little? I have hardly. एक second. No, said the fairy. I must take it just as it is. I wish. Look through mine just once, said Carl. To help to grant them things they to a new show them their future. See if is a leaf turns on. You shall look over your book, said the fairy, and saw the pages, turn them. They look in wonder. Could it be that? Here was a page ugly, while the very next page were little pictures. Some pages were decorated with silver and the rainbow brightness. To take them, according to which of the color are mentioned in the passage? Pure white. Yes, pure white का use किया गया है. So second would be there. फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड है यहाँ पे, एंड उसके बाद में बात करी गई है यहाँ पे प्योर वाइट, सॉरी गोल्ड एंड सिल्वर कलर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स आर मैंशन इन द पैसेज? तो प्योर वाइट भी एक कलर यूज़ किया गया, बट सम पेजेस विद डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर कलर्स ना. सो आई थिंक ओनली वन होना चाहिए, क्योंकि कलर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे. डार्क ब्लू तो यूज़ नहीं किया गया है. And pages as pure white and beautiful. So इस तरीके से first and second would be there, but if they are first and second mark for review करते हैं. I think मुझे लग रहा है कि why did the fairy visit the two little boys again after a long time?
One day fairy suddenly appeared to them, said, "I've been sent to give you a New Year present." Okay, New Year present. तो सॉरी, यहाँ पे क्या था? To give them a New Year present. Okay. She glitched, and after a long time that they have bought each a new book, she said, and will take back the others to father time. To take the old books from them. Bought you each book, sit and will take back the others to father time who sent them to you. May I not keep mine a little longer? It was instructed by father time. I'm not sure about fourth. According to the passage, which of the following is the request made by Philip to the fairy? To let him paint on the last page of the book. Okay. I have brought you each a new book, she said, and will take back the others to father time who sent them to you. May I not keep mine a little longer? I have hardly. Second and third हो जाएगा यहाँ पे, because I'd like to paint something on the last. No, said the fairy, my mistake is I wish I could through once, said Carl. Okay, so second and third हो जाएगा. उसके बाद में according to, why did the fairy do when the boys were looking at their, what did the fairy do when the boys were looking at their books? The pages of each book. She lit for each of them a little silver lamp, by the light of which they saw the pages as she turned them. She lit a little silver for each of them. The words on the painting along with the no held a color palette no. What did the fairy do when the boys looking at their books? You shall look over your book, said the fairy, and she lit for each of them a little silver lamp. Yes. एंड यहाँ पे क्या था? लुक ओवर. जब वो किसी चीज़ पे अपना क्या कर रहे हैं, उसको देखना, ग्लैंस करना, नॉट केयर, एग्जामिन. यू शैल लुक ओवर योर बुक. ग्लैंस, देखना किसी चीज़ को, ये हो सकता है सिनोनिम पूछा था. एंड डेलिकेट का फ्रिजाइल हो जाएगा. थर्ड वन, क्योंकि यहाँ कलर्स के बारे में बात कर रखी है, सो गोल्ड एंड सिल्वर कलर्स होगा, बट डार्क ब्लू तो नहीं होगा. सो थर्ड कांट बी पॉसिबल एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. Fourth, according to the passage, why did the fairy visit the two little boys again after to take the old books from them? Yes, यही होगा ना, because यहाँ लिखा हुआ है after a long time the fairy came again to the boys. I have brought you each a new book, she said, and will take back the others to father time who sent them to you. Wish I could it was instructed by father time. Clear response, I'm not sure. Okay, because of the overwhelming inquiries for the model, the brand was advanced its release date. Overwhelming inquiry, the overwhelming inquiry for the model. Inquiry, it's inquiry और inquiry दोनों हो सकता. overwhelming तो नहीं होगा. overwhelmed inquired to the model. Inquiry, because of the overwhelming inquiry for the model, he has pulled off an extraordinary feat in completing the voyage. Feat, it's not feat, it should be wrong. So एक बार चेक कर लेते हैं. He is an expert. He had to mortgage our house to start my dairy business. We had to
have to mortgaging our house. We have to mortgaging, no, had to, no correction required. Despite the recent slump, the company has come up with an extraordinary predict. The company came up, no correction required लग रहा है, because of the feed, ठीक है. The chef chose to add up a little salt to the stew to make it taste better. Sons, okay, 27. We can only hope that the leader ignores to listen to a sound advice and एस आता है तो वो वर्ब होता है, एडवाइस नाउन है यहाँ पे, गवर्न्स विद द बेनिफिट ऑफ नॉलेज. नॉट श्योर. होटल रूम्स आर द लेस एक्सपेंसिव इन द ऑफ सीजन. होटल रूम्स आर द मोर एक्सपेंसिव. लेस एक्सपेंसिव कहाँ होते हैं होटल रूम्स, तो मोर एक्सपेंसिव होंगे ना इन द ऑफ सीजन. So could be here. And third one I am feeling like कि प्योर वाइट पेजेस तो कलर्स तो शायद यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर कलर्स की ही बात कर रहा है, बट थोड़ा सा ट्रिकी सा दे रखा है. आई एम फीलिंग दैट. सो इस हिसाब से गोल्ड एंड सिल्वर कलर्स की बात कर रखी है. नहीं, इट इज़ सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स आर मेंशन ना, तो फर्स्ट एंड सेकंड कर देते. लेट इट वुड बी according to the passage, why did the fairy visitor tool it again? To take the old books from them. To punish? No, it was instructed by Father Time. The boy tore a page. No, fairy point by the boys. So it was instructed Father Time का क्या मतलब है? I had idly fairy come to again. The boys have bought you each a new book, she said, and will take back the others to Father Time, who send them to you. May not keep final details. Okay, let it be. चलो नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं. इन द नेक्स्ट सेक्शन आपको रिव्यू. ओके, जस्ट क्विकली हम चेक कर लेते हैं एक बार. यहाँ से आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी. ओके, अप्रॉक्सीमेशन दे रखा है. ओके, यहाँ से हमारे पास में, ठीक है. ओके, अप्रॉक्सीमेशन स्टार्ट करते हैं. 23 इंटू 8 कर देंगे. दुनिया 16 8 या 24 हो जाएगा. 184 हो जाएगा. 70 इंटू 8, 8 7 56, ठीक है. या 69 इंटू 8 ही कर लेते हैं ना, राइट. 69 इंटू 8, 8 48 हो जाएगा. 9 8 72, दैट मीन्स 552 एंड 184 6 13 और 6 7 68 69 ऐड करना है तो 15 9 10 805 के आसपास आएगा, राइट. उसके बाद में आता है कि 220 22 दूना 44 हो जाएगा आपके पास में. और ये 264 हो जाएगा और 64 यहाँ से लेस होगा तो 200. ओके, 784 है, 228 है, 56 हो जाएगा. 522 है ही, 58 है. ओके, सो 58 9 9 5 45 है, 9 8 72 है. दैट मीन्स आपके पास में ये 58 से ये 9 टाइम्स चला जाएगा, 522, एंड 28 से ये 2 टाइम्स जाएगा. सो 9/2 आ रहा है. 9/2 आई एम गेटिंग. ओके, सॉरी 9/2 कहाँ गेट आ रहा है. 10 डिवाइड बाय 2 क्या आ रहा है. 1/2 + 9 आएगा. सॉरी, हाफ आ रहा है ना. 9.5 आएगा, करेक्ट. गलत करी थी. 450 हो जाएगा. एंड 511 है और उसमें से 486 तो 5 आएगा. और 10 में से हट गया 2, 25. सो 25 25 5 9 18. ओके, 1253 है. 1121 जाएगा तो 132 रहेगा. और रूट x है, दैट इज़ आपके पास 12 11 का 121.
ओके 640 है, इसका 35% निकालना है। सो 5 दूनी 10, 5 सत्ता 35 हो जाएगा आपके पास में, और ये हो जाएगा 32, 7 21, 7 दूनी 14, 224 एंड 2.25 मल्टीप्लाई 20, दैट मीन्स आपके पास यहाँ से 2 पंजा 10, 5 का 20, 55 25, ठीक है 45 है, और 70 115 जाएगा यहाँ से, दैट मीन्स लास्ट में आना चाहिए 9, ठीक है 109 आएगा आपके पास। उसके बाद में 729 है, 729 मीन्स 99 होगा, एंड माइनस ये है, और ये 102 आएगा यहाँ पे। सो ये 20 कितना हो जाएगा 122 है, एंड 229 में से 122 जाएगा आपके पास में 07 रहेगा, मतलब 107 सॉरी, ओके 850 है, 850 में से 270 जाएगा आपके पास 80, और 7 में से 2 के 580, 15 225 हो जाएगा, और 25 दैट मीन्स आपके पास में 250 हो जाएगा, 250 330 करेक्ट, ओके 55 इंटू 8, सो 11 पंजा 55 होता है, 8 होता है 40, 440 हो जाएगा, और ये 16 16 पंजा 80, 80 में से 50 जाएंगे तो 30 माइनस के 410, ओके 15 12 180, 180 दूना 360, तो माइनस का 180 रह जाएगा, और 1/4 है तो 70, तो दैट मीन्स आपके पास में 110 माइनस का रहेगा, ओके 8 तिया 24, 4 8 32, 8 तिया 24 24, और 150 ये रहेगा ही रहेगा, इसमें से जाएगा दैट मीन्स 6 हो जाएगा, और 4 में से 2 गया 1, इतना 1.26 दैट मीन्स 100, ओके 64 है तो 16 16 पंजा 80 माइनस का रहेगा, और 3.2 है 75 है, 5 2 पंजा हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 5 से 15 240 और 80 यहाँ पे 320 करेक्ट। उसके बाद में 110 हो जाएगा, और 150 यहाँ से जाता है हमारे पास में, तो इट वुड बी 60 एंड 11 वुड बी 71, नहीं एक सेकेंड, ये 110 हो रहा है, और ये 150 हो रहा है, सॉरी ये 40 आएगा ना, 40 में से 11 जाएगा तो इट वुड बी 9, यस 29 माइनस का आएगा करेक्ट, ओके 389 है, और ये आपको अप्रॉक्सीमेटली निकालना है, सो 389 390 कर लेते हैं इसको, एंड 2.6 है 6.9 है, सो 13 दूना 26 होता है, 13 तिया 39 होता है, एंड ये यहाँ से हो जाएगा आपके पास, सो 150, सो 2.6 सॉरी 2.6 क्यों ले रही हूँ मैं, हाँ ले भी सकते 69.7, ओके आई विल गेट इट, यहाँ पे बाद में कर लेंगे इसको, 625 है 0.25 यानी 1/4 होगा, सो 25 का ये स्क्वायर होता है, और ये 5 का भी स्क्वायर होता है, तो 5 ही आएगा ना यहाँ, ओके उसके बाद में आता है कि ए की मासिक आय बी की मासिक आय का इतना है, ओके ए की इनकम जो है वो बी की इनकम का 90% है, 9:10 हो गया, बी अपनी इनकम का खर्च करता है 80%, ठीक है, तो बी अगर 80% खर्च करता है तो मतलब कि ये कितना बचाता होगा, 2 बचाता है, तो ए की मासिक बचत जो बी की मासिक बचत का 2 गुना है, मतलब कि हम ये बोल सकते हैं 4 है, ठीक है 4 है, सो ए का मासिक आय कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, उसकी मासिक आय का लगभग कितना है, तो 5/9 हो जाएगा, 9 पंजा 45 हो जाता है, अगेन 9 पंजा 45 55% के आसपास हो रहा है, तो 56% हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट पूछा है, ABC समान अवधि के लिए और उनके द्वारा अर्जित लाभ इतना है, ठीक है, अर्जित समान अवधि के लिए निवेश किया और उनके द्वारा अर्जित कुल वार्षिक लाभ इतना है, सो 0.25 है, 0.75 है, 1.25 है, अगर इसका आप रेशियो लेते भी हो तो 25 से कम 25, 25 से 75, 25 पंजे 125, 8 और 1 9, ठीक है, सो बी का कितना निकाले, 3 तिया 9 है, 3 चौक 12, और 3 तिया 9, और 5 435, ठीक है 435 हो जाएगा, और उसके बाद में आता है कि 240 लंबी गाड़ी जो है वो पुल को 45 सेकंड में करती है, ठीक है 45 सेकंड में कर रही है, इसका मतलब 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 9 45, 3 तिया 9, 3 8 24, 16 डिवाइड बाय 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, पुल की बात कर रहे थे हम यहाँ पे, प्लेटफॉर्म को 240 और x हो जाएगा, प्लेटफॉर्म को 16 और ये 3 और ये 40, सॉरी पुल की भी तो लंबाई होगी, येस एग्जैक्टली आई एम डूइंग मिस्टेक ना अगेन,
सो 240, अच्छा प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो पुल की जो लंबाई है ना उसका 4/5 है। सो पुल 5 होगा, ये 4 होगा, तो इसका मतलब ये 5x होगा, ये 240 होगा एंड 45 सेकेंड्स में पार करती है। ठीक है, और 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन हो गया यहाँ पे। 13×52, 13×52 माइनस का 4 होगा। ठीक है, माइनस का 4 होगा, प्लस का 4, प्लस का 4, माइनस का 13, माइनस का 13 और 9 एकम 9, तो 9 1 9 और 1 हो जाएगा। सो 9 बड़ा है, 4 बड़ा है, CMD हो जाएगा। ओके, उसके बाद में आता है कि यहाँ पे 3 प्लस का 3 प्लस का 3 माइनस का 3 माइनस का 7 3 21 माइनस 3 7 3 ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू विड बी दिस। ठीक है, उसके बाद में ऑब्वियस सी बात है कि यही बड़ा होगा क्योंकि सेकंड यहाँ पे आगे माइनस का साइन है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद में 12 कम 12 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1 प्लस का 1 माइनस का 12 माइनस का 12, 4 या 12 तो 4 3 4 और 3 हो जाएगा। दैट मीन्स ये 4 बड़ा है, 3 बड़ा है, 4 बड़ा है, 3 बड़ा है, तो लेस देन हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा यहाँ पे। उसके बाद में 2 वर्षों के लिए संयोजित करने पर इतना प्राप्त होता है, 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज। सो ये क्या कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करें। पहले हम थोड़ा सा भी DI को कर लेते हैं ना यहाँ पे, सो दैट कि हम एक थोड़ा सेफ साइड पे चले जाएंगे। और ये टोटल दे रखे हैं तो मेल फीमेल निकलेंगे यहाँ से। सो एक बार STUV एंड W आई एम गेटिंग टोटल एंड मेल एंड फीमेल। ओके, डिफरेंस देख लेते हैं। आई थिंक 5 को होगा, 1 2 3 4 5, सो 200 5 5 चौका 20 40 40। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल देख लेते हैं हम लोग। सो टोटल में अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 यानी 120 यानी कि 1320। ठीक है, फिर उसके बाद में 600 है, फिर उसके बाद में जस्ट आपको 40 बढ़ाना है। सो 840 हो जाएगा। V का कितना होगा, जस्ट आपको 40 कम करना है। सो वी कैन से कि 1560 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 40 40 80 बढ़ाना है, 80 1680 हो जाएगा। ओके, 1680 हो जाएगा, और 120 80 7 8 1800। ठीक है, ओके, उसके बाद में आपको यहाँ पे मेल की बात कर लेते हैं। तो 40 और 40 कितना होता है हमारे पास, 80। ठीक है, तो 80 कम कर देंगे तो 720 हो जाएगा। ओके, उसके बाद में 40 कम करेंगे तो 360 होगा। उसके बाद में यू के लिए आप 40 40 80 बढ़ाओगे 480 होगा। उसके बाद में 40 बढ़ा दोगे 840 होगा। एंड देन W के लिए कितना था, 600, तो यहाँ से 1080 हो गया। 1320 था और इसमें से आपने 720 जाना है तो 600 हो जाएगा। 360 ये कितना था, T 600। ठीक है, 360 40 और 5 में से 3 गया 240, तो 10 की जरूरत। ठीक है, 840, 14 में से 6 गया और 7 में से 4 गया 360, और 14 7 और 1 8। ओके, ये 20 15 में से 8 गया 7 और 6 15। ठीक है, 1080 हो रहा है। तो टी में काम करने वाली महिलाओं की संख्या पूछ रहा है। टी में काम करने वाली जो फीमेल्स आएंगी वो 240 आएंगी। देश W में काम करने वाले पुरुष का कितना प्रतिशत अधिक या कम है, 600। सो डायरेक्ट ही निकाल लेते, 12 दूना 24 12 पंजा 60, मतलब 3/5, इट मीन 60%। ओके, एस में काम करने वाले जो पुरुष हैं यानी कि मेल हैं वो 720 है। यू में महिलाएं कितनी हैं, 360, मतलब हाफ ही हो रही हैं। ओके, W में काम करने वाली महिलाएं कितनी हैं, 1080 है। यू में काम करने वाले जो पुरुष हैं यानी कि 480, इसका कितना प्रतिशत है। सो 12 4 48 है, 12 9 8 है, और सॉरी 108 है, और 900 में 25 नाम 225, करेक्ट। ओके, यहाँ पे टी और यू में काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनकी औसत निकालनी है। टी और यू में काम करने वाली जो फीमेल्स हैं उनकी औसत निकालेंगे तो 600 का आधा कितना होता है, 300। ओके, वी में काम करने वाले जो पुरुष हैं दैट इज़ आपका 840 है, 12 7 84 लिख लेते हैं इसको। और एस में काम करने वाली फीमेल्स बोल रहे हैं, इसमें काम करने वाली फीमेल्स तो 12 5 60 है, तो 7:5 आना चाहिए, दैट इज़ करेक्ट। ओके, तो शुभम की वर्तमान आयु शगुन की वर्तमान आयु से, तो ठीक है, शुभम 6:5, वर्तमान से 6 वर्ष बाद शुभम और शगुन की आयु का। ओके, तो मैं रेशो से कर रही हूँ इसको। 6:5 है, 20:7 है। यहाँ 20 और 7 का डिफरेंस 3 है, तो 3 ऊपर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 और 15 आ जाएगा, 20 और 17 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे 2 का डिफरेंस कितना है, 6, 1 का वैल्यू 3 है। तो शगुन की वर्तमान आयु आपसे पूछिए तो 15 या 45। ठीक है, क्योंकि वर्तमान आयु का इनका रेशो दे रखा था, शगुन ही पूछा ना, यस एग्जैक्टली, 15 या 45। ओके, नाउ निश्चित धनराशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में हो जाती है 8 वर्षों में। चक्रवृद्धि ब्याज का तो मैं ये वाला कॉन्सेप्ट भूल गई हूँ, तो थोड़ा सा देखते।
तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है, सबसे बड़ी और दूसरी संख्या का योगफल। सबसे बड़ी कौन सी होगी ये? आई थिंक एक बार चलो करते हैं कि 5x होगी, दूसरी सबसे बड़ी कौन सी होगी? 4x होगी। इट मीन्स 9x का योगफल जो है ना वो सबसे छोटी संख्या, दैट मीन्स मुझे लगता है 2x होगा और 21 के बराबर होगा, तो 7x दैट इज़ 21, तो x की वैल्यू 3 होगी। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 4 4 12 होगी और 3 दूनी 6 हो जाएगी, 15 हो जाएगी, तो दैट मीन्स 12 पूछा है आपसे। 6 12 और 15 ये बढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये 60 हो जाएगा, तो 10 5 और ये 4 हो जाएगा। 3/8 बढ़ जाने के बाद में नल बंद कर दिया जाता है, शेष। ओके, सो 5/8, तो टंकी को भरने में ए और बी के द्वारा कितना भरा जाता है? 15 15 चौको 60 और 4 से ये 2, 5/2, ठीक है। 5/2 तो ये है ही। और सी को कितना टाइम लग रहा है? 3/8 भरने में 60, दैट इज़ आपके पास में कितना? 4। तो 15 चौको 60 होता है, सो 45 डिवाइड बाय 8, 5 डिवाइड बाय 2, इसका मतलब यहाँ पे 4 और ये 4 20 मतलब यहाँ 65 में 8 का करेंगे तो 8 2 64, तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा कर लिया क्या मैंने? एक सेकेंड, टंकी को भरने में कितना समय लगा? ओके, कुछ गलती कर रहे हैं अपन यहाँ पे कि सी को बंद कर दिया जाता है, शेष टंकी को। अच्छा, पहले वो एक साथ ही में काम कर रहे हैं ना, 19 आएगा, करेक्ट है। तो बेस में 19 आना चाहिए, तो 60 × 3/8 डिवाइड बाय 19, सो 4 दूनी 8 है और ये 15 है, 15 3 45 डिवाइड बाय 38 होगा। एंड सी बंद कर रहा है, ए और बी काम कर रहे हैं, तो 15 60 और ये 5/8, तो 15 चौको 60, 4 से 2 बार 5/2, दैट मीन्स आपके पास में 19 19 95 45, तो 40 और ये 38, ठीक है। ये 19 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, तो 19 3 57, क्योंकि 19 3 57 नहीं हो सकता है यहाँ पे। एंड 13/3 13/19, यस करेक्ट, यही होगा। ओके, 64 2 जाए कितना होता है? 128 होता है। ओके, और 16 अट्ठे भी इतना ही होता है ना। सो 128, अब 16 और 8 तो 24 होते हैं, सो 64 2 जा, इसको ऐसे कर लेते हैं 16 4 जा, एंड 32 एंड 4 कर सकते हैं, ठीक है। 36 भी हो गया, तो ये 2 हो गया, 2 हो गया, 16 एंड 16 हो गया, ठीक है। 6 कम 6 दूनी 12 6 18 चाहिए, और 6 और 3 ही करोगे तब भी 9 आएगा आपके पास में, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 2। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा यहाँ पे, दैट मीन्स ये यहाँ पे होगा। ओके, उसके बाद में कालीन, इसको यहाँ पे करते हैं। ओके, अनुमानित पूछ रहा था आपसे, दैट मीन्स ये 3 था आपके पास में, 7 है कुड बी, एंड 390, 3 एकम 3 13, 7 एकम 7 7 8 56 18 के आसपास आ रहा है, सो आई एम नॉट श्योर मच अबाउट इट। इंग्लिश करते हैं यहाँ पे, कंपाउंडेड एनुअली 2 ईयर्स के लिए। ओके, सो ये आपको इतना प्राप्त हो रहा है, तो 30 का रेट निकाल लेते हैं हम लोग पहले। ओके, 30 30 60 होता है, और ये 66%, मतलब कि 25 350 का 166% आएगा, तो पी आ जाएगा हमारे पास में। और उसको 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज निकालना है आपको, तो 20 और ये कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। सो 166 से पहले इसको कट कर लेते हैं हम लोग, दैट इज़ ईजी। 6 दूनी 12 12 13 और ये 3, तो मतलब 1 टाइम्स जाएगा 166, 13 में से 6 गया 7 और 14 में से 6 गया 8, ठीक, और ये 5 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 500, 5 का 30, 6 पंजा 30, तो ये 830 हो रहा है, इंटू 6 36 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 835 टाइम्स चला जाएगा, तो ये हो रहा है हमारे पास में 450 60। ओके, 450 हो रहा है। कुछ गलती कर दी क्या मैंने यहाँ पे, क्योंकि 30 है 2 वर्षों के लिए है, सो 30
प्लस 30, ओके, प्लस 30 इंटू 30, तो ये अगर आप निकालते हो, सॉरी 69 होगा ना, आई एम डूइंग 66, 169 से करना है, ओके, तब भी 1 टाइम से जाएगा, तो 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया 4, और 14 में से जाएगा 845, ठीक है, 500, इसका 345, ठीक है, तो 5 टाइम 15, 15 छंग 90, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास में, ताकि मिश्रण को बेचने पर इतना होगा, तो 15 रुपये प्रति किलोग्राम 15 है, और 18 रुपये प्रति, ओके, तो मिश्रण में 23.2 है, इसका 40 मतलब 145 का, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, सो दैट मीन्स अपन ने इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, तो 5 दूना 10 है, 5 नम 45 है, राइट, और 5 दूनी 10 है, सो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 464, डिवाइड बाई 29, तो 29 सबसे मल्टीप्लाई कर लो, सो 15 दूना 30, 15 नम्मा 135, 435 तो यहीं आ जाएगा, ओके, और 18 दूना 36 है, 18 72, 162, सो 12 4 1 5, 522, तो इसको लेस कर लेंगे, 464 में से 35 जाएंगे, तो 14 में से 5 गया 9, 5 में से 29, एंड 522 में से 464 जाएगा, तो 8, 11 में से जगह 58, मतलब कि 2:1 आ रहा है, ओके, 15 कितने, 15, 1 की वैल्यू 15 है, तो 30 आएगा ना यहाँ पे वैल्यू, ओके, सो ये, हाँ, ये करना था, थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा था, सेकेंड क्या आएगा, चलो ये ना कन्फ्यूजन हो रहा है, बट मुझे लग रहा है 17 आ सकता है, सो 389 है, और 2.6 है, 6.9 है, अगर मैं इसको 7 ले भी लेती हूँ तब भी ये, चलो ठीक है, 10, ये 90 कर लिया, 13 दूना 26 है, 13 तिया 39, राइट, और चलो 6 पंजा 30 ले लेते हैं आप इसको, और 25 के आसपास आ रहे हैं ऐसे, तो सो आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड, डोंट नो क्या होगा, चलो नेक्स्ट सेक्शन कर लेते हैं, ओवरव्यू हो गया, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू भी हो सकता है, चलिए रीजनिंग सेक्शन पे चलते हैं, ओके, सबसे पहले आपको दे रखा है विभिन्न शाखाओं जैसे इलेक्ट्रिकल और ये रहते हैं, 5 कितने लोग हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो 7 बना लेते हैं, ओके, ये बोल रहा है सिविल और केमिकल के बीच में जो है, जो सिविल के उनके बीच में 4 हैं, ठीक है, तो सिविल और केमिकल जो सिविल के ऊपर रहता है, तो केमिकल पहले आएगा और इसके बीच में 4 आएगा, ओके, केमिकल 1 2 3 4, तो बना लेते हैं केमिकल 1 2 3 4, एंड देन सिविल, ओके, एंड केमिकल यहाँ 1 2 3 4, सिविल लास्ट में, तो सिविल एक बार 2 पे एक बार 1 पे होगा, मैकेनिकल, अच्छा केमिकल और कंप्यूटर के बीच में 2 हैं, पहले ये देख ले, तो केमिकल और कंप्यूटर के बीच में 2 हैं, केमिकल और कंप्यूटर के बीच में 2 बना लिया, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर रहता है, ठीक है, ओके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ठीक नीचे रहता है, लेकिन 5वीं मंजिल पर नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये इलेक्ट्रिकल है, ये ध्यान रखना है इसमें, सो इलेक्ट्रिक जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ठीक नीचे रहता है, तो फर्स्ट केस में तो हट जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फर्स्ट केस में जहाँ पे आपका सिविल सेकंड पे आ रहा है वहाँ पे 5th नंबर पे आ जाएगा, सो इलेक्ट्रिकल जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ठीक नीचे है, और मैकेनिकल जो है वो ऊपर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, करेक्ट, सो सबसे ऊपरी मंजिल पर मैकेनिकल रहता है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर कितने रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर कितने रहते हैं, 1 2 3 4 5, 5 3 से अधिक, ओके, इलेक्ट्रिकल, ओके, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के बीच में 2 हैं, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर नो, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के ठीक नीचे रहता है, मैकेनिकल नो, सिविल सबसे निचली मंजिल पर रहता है, और केमिकल 5th मंजिल पर रहता है, केमिकल वाला 5th पे नहीं रहता, ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो है वो डैश इंजीनियर के ठीक नीचे रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर इंजीनियर के ठीक नीचे रहता है, मैकेनिकल और कंप्यूटर के बीच में उतनी ही मंजिलें हैं, मैकेनिकल और कंप्यूटर के बीच में कितनी है, 3 हैं, जितनी कि केमिकल
और इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, प्रोजेक्ट के आप ये लास्ट में करते हैं, ये भी लास्ट में करेंगे। ओके, एक सेकेंड, पहले ये करते हैं। 7 व्यक्ति हैं, इर्द गिर्द बैठते हैं बाहर की ओर। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो मनु और ऋत्विक, ऋत्विक करण के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो करण के ठीक बाईं ओर ऋत्विक, करण के ठीक बाईं ओर ऋत्विक। ओके, और मनु और ऋत्विक के बीच में 2 लोग हैं, बिठा लेंगे। 2 पॉसिबिलिटी लेके चल ही रही हूँ मैं, एक सही होगी उसमें से, ठीक है। और शैना शैनी करण के दाएं से दूसरे स्थान पर है, सो फर्स्ट वाली रॉन्ग हो जाएगी। करण के दाएं से शैनी, शैनी हो गया। रवि गीता के आसन में बैठा है, तो रवि और गीता कहीं होंगे। सो गीता के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है लोपा, सो 1 2 3 दैट इज़ आपके पास में लोपा। तो गीता यहाँ पे आएगा आपके पास में ऋत्विक के एग्जैक्टली नियर में, और रवि गीता के आसन बैठा है, ठीक है। रवि मनु के भी आसन हो गया, तो शैनी डैश और डैश के आसन बैठी है, मतलब लोपा और मनु, लोपा और मनु। ओके, करण डैश के बाइयों से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो मतलब मनु। 1 2 3, ओके। उसके बाद चलिए पहले इसको कर लेंगे ना, कौन सा, 17। ओके, सो मनु के संदर्भ में रवि का क्या स्थान है? मनु के संदर्भ में रवि का एग्जैक्टली दाएं। ओके, लोपा के बायों से गिनने को लोपा और ऋत्विक के बीच में कितने व्यक्ति हैं? सो लोपा और ऋत्विक पूछा है, सो ओनली 1, ओनली एक। कौन सा मतलब फॉल्स सही पूछा है? लोपा करण और शनि के आसन बैठी है, लोपा करण और शनि, तो सही है। गीता ऋत्विक के ठीक है। रवि और करण के बीच में 2 या 3 व्यक्ति बैठे हैं, रवि और करण के बीच में 2 या 3 बिल्कुल सही है। मनु गीता के आसन, मनु गीता के आसन नहीं है, दैट इज़ गलत। उसके बाद में यहाँ से अपन पहले इसको कर लेते हैं कि इनके बीच में देखो स्क्रॉलिंग भी है यहाँ पे ना, इसको स्क्रॉल भी करना पड़ेगा। सो डॉलर और 9 के बीच में कितने अक्षर हैं? तो दैट इज़ डॉलर दिख रहा है मुझे, और ये 9 यहाँ पे दिख गया। तो अक्षर पूछा है यहाँ से, तो 1, ये 2, ये 3, ओके, ये 4 और ये 5 हो जाएंगे आपके पास में, क्योंकि ओके डॉलर तो ये तो 9 हो जाएगा। डॉलर वापस से देख लेते हैं एक बार। 1 हो जाएगा, देन 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एंड देन 5। ओके, सॉरी गलत हो गया। यहाँ से 7 जो है वो 4 से संबंधित है, और ऐसे ही 7 और 4 फिर एक छोड़ करके x जो है वो p से संबंधित है। तो उसी प्रकार से जो f है वो 2 छोड़ करके 5 से रिलेट करेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे यदि स्ट्रिंग से सभी अक्षर हटा दिया जाए तो दाएं छोर से 7वां कौन सा होगा? अक्षर हटाने हैं। सो दैट मीन्स आपके पास में ये 1 5, मतलब ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो रहा है, देन 4 और ये 5, ओके, ये 6 और 7 परसेंटेज होगा 7। वापस एक बार देख लेते हैं कि 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ठीक है। परसेंटेज होगा 7 ही बोला था। ओके, ऐसे कितने अंक है, मतलब नंबर है जिनके ठीक बाद एक सिंबल होना चाहिए, ठीक पहले एक लेटर होना चाहिए। तो सिंबल से पहले नंबर देख लो, सिंबल से पहले नंबर नहीं है, सिंबल से पहले नंबर, सिंबल से पहले नंबर लेटर 1, सिंबल से पहले नंबर लेटर 2, उसके बाद में सिंबल से पहले नंबर लेटर 3, सिंबल से पहले नंबर नहीं है, और सिंबल से पहले नंबर नहीं है, सो इट कुड बी 3। ओके, अब यहाँ से आ जाते हैं हमारे पास कि ये बोल रहा है कि 8 व्यक्ति 1985, 1986, 87, 88, 89, 90, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। 8 लोग बोल रहे हैं ना, वो क्रमागत का मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव। सो 85 से 92 तक हो गया। जेड और वाई के बीच में केवल एक है, जेड और वाई के बीच में एक है, वाई और क्यू के बीच में 3 है। ओके, क्यू और एल के बीच में 4 हैं, क्यू और एल के बीच में 4 है, ठीक है। उसके बाद में आता है कि एल ए के ठीक बाद है, ए के ठीक बाद होना चाहिए एल, कम से कम एक व्यक्ति एम से पहले है, एटलीस्ट एक पहले होना चाहिए एम से। जेड के बाद में जितने भी हैं बी से पहले जितने भी हैं ना उसका आधा होना चाहिए। जेड के बाद बी से पहले से आधी है। बी और जेड क्रमागत कंपनियों में शामिल हुए, बी और जेड जो है वो क्रमागत में शामिल हुए, ठीक है। सो बी के पहले इफ़ आई से कितना है 8 है, तो 1 2 3 4। सो मुझे लगता है कि ये जो Z है मैंने 88 पे एक बार बिठा लेना है,
और बी से जस्ट एक सेकेंड, जेड के बाद शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या बी से पहले शामिल होने की आधी है। सो 1 2 3 4 यहाँ बी होगा और यहाँ जेड होना चाहिए, करेक्ट। ओके, जेड और वाई के बीच में एक हो सकता है। सो अगर ये वाई यहाँ बिठा लिया हमने बी के ऊपर और जेड और वाई यहाँ पे, एक केस में मैंने जेड मतलब एक केस में क्या मैंने 90 पे जेड बिठाया, 89 पे बी बिठाया, ठीक है। वाई और क्यू के बीच में 3 होगा। सो क्यू के बीच में 3 यहाँ तो पॉसिबल है नहीं, तो क्यू बिठा लिया एक बार। क्यू और एल के बीच में 4 होना चाहिए। सो 1 2 3 4 एल बैठ गया। ए ठीक है, एम के ऊपर एटलीस्ट 1 तो होना चाहिए। सो बाकी का बचा है ए बी एल एम पी क्यू। सो पी मुझे नहीं दिख रहा है कहीं पर भी, तो पी यहाँ पे बिठा लेते हैं। तो सही युग्म कौन सा है कि बी 1986 और ए, 86 और ए, ठीक है। ई 87 और जेड, 87 और जेड तो नहीं है, 89 और एल भी नहीं है, 91 और क्यू नहीं है। सो ओनली सेकेंड रो होगा। ओके, कंपनी में शामिल होने वाला पहला व्यक्ति कौन सा है, तो पी होगा ना। ओके 87, एक सेकेंड, 24 मैंने कहीं गलत तो नहीं लगा दी, पी। ओके 87 में जो हुआ है दैट इज़ आपका एल। पी ए के ठीक बाद तो एल हुआ है, एम के ठीक बाद नहीं होगा, एम के ठीक बाद जेड नहीं है। यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, क्योंकि देखो पी जेड और वाई के बीच में, ठीक है। पी जो है, सॉरी डैश के ठीक बाद शामिल है, तो पी और ए एक साथ होने चाहिए ना, वाई और एम नहीं हो रहा है आपके पास में, करेक्ट है, सही तो है। एम कौन से वर्ष में हुआ है, तो 91 में हुआ है। एंड ऐसा हो जाता है कभी कभी ना, समटाइम्स थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो जाती है। तो 8 व्यक्ति हैं जो कि 4 एक में बैठे हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है ना, ये 1 लाइनर, ये बहुत ज़्यादा मेंस में ना, क्लैरिकल मेंस में देखने को मिले थे। सो ABCD जो है वो आपका दक्षिण में बैठे हैं, और ये HIJK ये उत्तर में बैठे, ठीक है। ID के विपरीत बैठा है, C के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, C के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर A, C के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर A बैठ गया, और CJ के विपरीत है, CJ के विपरीत हो जाएगा, और ID के विपरीत बैठता है। सो I जो है वो D के विपरीत यहाँ बैठ सकता है, ID के विपरीत बैठ गया, और ये B हो गया, NB हो गया। ओके H के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, दैट इज़ K। H के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है K। ओके तो कौन सा B के विपरीत बैठा है, दैट इज़ H, ठीक है। उसके बाद में यहाँ सिलॉक्स हमेशा मैं इंग्लिश में करने की कोशिश करती हूँ। केक जो है वो पेस्ट्री नहीं है, और केक्स जो है वो टार्ट्स हैं, दैट इज़ ओके। ऑल केक्स कैन बी टार्ट्स, नो। ऑल टार्ट्स कैन बी पेस्ट्रीज, नो, बिकॉज कुछ पार्ट नहीं जा पाएगा, तो नीदर। ओके ऑल 7s जो है वो 3 हैं, और ऑल 9 जो है वो 3 है। ओके सो कोई भी 3 9 नहीं है, कांट से सम 9 कैन बी 7, येस इट कैन बी पॉसिबल। सो सेकेंड वुड बी ट्रू, ओके। ओनली अ फ्यू पर्ल्स एमराल्ड हैं, और ऑल सैफियर पर्ल्स है, ओके। सम सैफियर्स आर एमराल्ड इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी, सम सैफियर एमराल्ड बीइंग अ पॉसिबिलिटी, करेक्ट। सम पर्ल्स आर नॉट एमराल्ड, बिल्कुल बोथ फॉलो होंगे, ओके। उसके बाद यहाँ से अपन ने ऊपर क्वेश्चंस छोड़े थे, पहले वो कर लेते हैं। तो पहले 16 हो जाएगा, 18 है, 15 है, देन 10, 5, 3 एंड 20। ओके 17, 18, 19, 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22, 23, 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19 नहीं है, 11, 12, 13 नहीं है, 6, 7 नहीं है, 20 से बड़ा कोई होगा नहीं, 4, 5, 6, 7, 8 होगा नहीं। उसके बाद में 11, 12, 13 तो होगा नहीं, 16, 17 और ये तो नहीं हो रहा है, तो 0 होगा, तो कोई भी नहीं है। उसके बाद में आता है कि एक परिवार में 6 सदस्य बोल रहा है आपके पास में, और डी की पुत्री की कम से कम एक संतान है। ओके मतलब डी की एक डॉटर होनी चाहिए। ओके सी और बी जो है वो सेम होने चाहिए। डी सी का ससुर है, डी जो है वो ससुर है, दैट इज़ सी का, और उसकी केवल 2 संतानें, तो डी की केवल 2 संतानें होंगी, और डी सी का ससुर है, ठीक है। तो ए एफ की बहन है, ए बहन है एफ की, एफ डी का अविवाहित पुत्र है। ओके अविवाहित पुत्र है, और ये ए है, तो मतलब ये जो सी है ना वो फीमेल क्या मेल हो जाएगा, और बी और ई जो है वो अलग अलग लिंग के हैं,
मतलब बी जो है वो मेल होगा तभी ई जो है वो फीमेल होगा, राइट। सो ये ई हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे, एंड देन आपके पास ये बी होगा। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। एक सेकेंड, बी की पुत्री की कम से कम एक संतान है और बी और ई अलग अलग लिंग के सहोदर हैं। दैट मीन्स आपके पास में यहाँ पे ये ई एंड बी आएगा आपके पास में, उसके बच्चे बन जाएंगे ये 1 2 3 4 5 6। सो ए एफ की बहन हो गया, एफ डी का अविवाहित पुत्र हो गया, बी और ई अलग अलग लिंग के हो गए, सी एम के हो गए, डी ससुर है उसकी केवल 2 संतानें हैं, ठीक है। तो एफ सी से किस प्रकार से संबंधित है, तो एफ जो है वो ब्रदर इन लॉ, ओके। डी जो है वो जेड से विवाहित है, तो जेड ई का क्या लगता है, तो वो दादी या नानी हो सकती है, ओके। बी एफ ई सी, बी एफ ई सी, तो ई अलग होगा ना क्योंकि डी भी मेल है, ई फीमेल है, यस, ओके। अब यहाँ से अगर आप इसको ट्राई करते हैं जो आपका डायरेक्शन डिस्टेंस है, तो ए से बी की तरफ जा रहा है, तो बी ए के पश्चिम में 12 मीटर की दूरी पर है, बी से सी तक पहुँचने के लिए उत्तर पूर्व, एक सेकेंड, सी जो है वो ए के उत्तर में है, ओके, और बी से वह सी तक पहुँचने के लिए उत्तर पूर्व की तरफ कितना जाता है, 13 जाता है, करेक्ट है, 13 चला गया, ओके। इस तरीके से अपन ने बना लिया, ठीक है। तो 169 और 144, दैट मीन्स 525, तो ए और सी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में सी के पूर्व में 10 मीटर की दूरी पर है, दैट इज़ आपका डी, और डी से वो 5 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। अगेन देखो 5 मीटर आ गया ना, तो ए और एफ के बीच में भी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो बी और एफ के बीच की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, तो 10 और ये 22 हो जाएगा, ठीक है। तो सी ए के डैश की दूरी पर है, सी जो है वो मतलब ए के उत्तर में 5, ओके। डी के संदर्भ में बी की क्या दिशा है, तो ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, करेक्ट, ये हो जाएगा। स्ट्रक्चर के पहले मतलब एस, दूसरे यानी कि टी, 8वें 1 2 3 4 5 6 7 8 आर, और 9वें ई। रेस्ट और रेस्ट हो सकता है, और क्या होगा, सर्ट कुछ होता है क्या, चलो इसको सोचती हूँ मैं थोड़ी देर में, तब तक माइंड में आने दो और इसको कर लेते हैं। कितने शब्दों के अक्षर वर्णमाला के विपरीत क्रम में हैं, वर्णमाला के विपरीत क्रम में है, मीन्स ये क्या कहना चाह रहे हैं, चलो देखते हैं उसको। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अनुक्रम के बाईं छोर से तीसरे शब्द के तीसरे अक्षर, मतलब बाएं छोर से तीसरा शब्द है टी ए टी एच, तो इसके तीसरे अक्षर है एच, ठीक है। अनुक्रम के दाएं छोर से पहले शब्द के पहले अक्षर मतलब एल, इसके बीच में एल है 12 पे, ये है 8 पे, मतलब 9 10 11 3 हो जाएंगे ना, तीन हो जाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार अनुक्रम के बाएं छोर से, वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार, तो इस तरीके से आपके पास में पहले ए आना चाहिए, फिर उसके बाद में ई आना चाहिए, देन आपके पास में एल आना चाहिए, एल के बाद में ओ आना चाहिए, देन टी आना चाहिए, और उस हिसाब से आपके बाएं छोर से तीसरे शब्द जो है एल, उसका तीसरा अक्षर इट मीन्स डब्ल्यू हो जाएगा, और दाएं छोर से पहला अक्षर मतलब टी, टी का मतलब ये 20 हो जाएगा, 23, और इस तरीके से तो आपके पास में आई एम नॉट श्योर क्या बोलना चाह रहे। सभी शब्दों में से प्रत्येक शब्द के बाएं छोर से अंतिम अक्षर पर विचार करते हुए वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाता है, ओके। प्रत्येक शब्द के बाएं छोर से अंतिम अक्षर पर, सो सबसे पहले तो आपके पास में ई आना चाहिए। देखो पी है, टी डब्ल्यू है, टी है, ई है, एंड एस है, पी डब्ल्यू टी ई एस है, तो सबसे पहले ई आएगा ना, देन आपके पास पी आना चाहिए, देन आपके पास एस, देन टी, एंड देन डब्ल्यू। तो कितने शब्द अपने मूल स्थान पर रहेंगे, सभी शब्दों में से प्रत्येक शब्द के बाईं छोर से वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो सबसे पहले मतलब ये और ये कोई भी नहीं अपने स्थान पर रहेगा, क्योंकि सब अपने प्लेसेस को बदल रहे हैं। ये चेंज हो रहा है, डब्ल्यू से ये चेंज हो रहा है, टी और एस चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, तो कोई भी नहीं रहेगा।
शब्दकोश के हिसाब से अगर आप लगाते हो तो दाईं छोर से तीसरा पूछ रहा है तो एल वाला होगा डेफिनेटली। ये क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, हाउ मैनी ऑफ द वर्ड्स हैव देयर लेटर्स इन रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सो रिवर्स तो नहीं, यहाँ पे ई आ रहा है, ई के बाद में एल आ रहा है, एल के बाद में ओ आ रहा है, ओ के बाद में पी आ रहा है, तो ये तो रिवर्स तो नहीं है, ये तो सेम में जा रहा है। ए के बाद में एन, डी यूनिट सेकेंड भी नहीं होगा, टी के बाद में ए, उसके बाद में एच, नो, ओ, हाँ रिवर्स कहाँ दिख रहा है, ये तो ओ 12 फिर 13 हो रहा है आपके पास में, तो ये भी नहीं दिख रहा। सो एल है, एल के बाद में 13 हो रहा है, 13 के बाद में 23 एंड देन 19 हो रहा है, तो मुझे लग रहा है सिर्फ ये इलॉप वाला हो सकता है, बिकॉज रिवर्स तो कोई भी नहीं जा रहा ना यहाँ पे। रिवर्स का तो मतलब क्या होगा ना कि लाइक ए से स्टार्ट ना होकर कि जेड से, और वो तो कोई भी नहीं लग रहा मुझे, तो नन हो सकता है इसका आंसर, बट आई एम नॉट श्योर। हाउ मैनी लेटर्स आर बिटवीन द थर्ड लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द वर्ड। थर्ड लेटर जो है आपके पास में, उसका थर्ड लेटर, ठीक है, लेफ्ट हैंड से तो एच ही होगा ना, एंड द फर्स्ट ऑफ वर्ड जो है आपके पास में राइट से, उसका फर्स्ट वर्ड मतलब एल होगा। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल तो ये 12 है, ये 8 है, सो 9 10 11, 9 10 11 3 ही तो हो रहे हैं, तो ये क्या बोलना चाह रहा है, आई एम गेटिंग कन्फ्यूज्ड। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है दोनों क्वेश्चंस में। तो स्ट्रक्चर में यहाँ तो एक तो अपना, चलो ठीक है, पहला दूसरा एस टी हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 आर हो जाएगा और ई हो जाएगा 9, ठीक है, रेस्ट हो रहा है। और मुझे लग रहा है सर्ट तो क्या, रेस्ट तो ठीक है। इसमें बोल रहा है आपके पास में कोई शब्द नहीं है, तो जेड हो जाएगा कि अंतिम अक्षर का चयन कीजिए, तो ऐसे तो टी हो रहा है, CRT, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों नन लग रहा है, ठीक है, क्योंकि विपरीत वर्णमाला में तो कोई भी नहीं दिख रहा, सो इसका नन करना होगा, और ये मुझे समझ नहीं आ रहा। चलिए इसका मुझे भी याद नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस में जब डाउट हो तो छोड़ देने में ही ज़्यादा भलाई होती है। सो आई एम लीविंग क्लियर रिस्पॉन्स, सो सबमिट करते हैं, होप फॉर द बेस्ट। माय गॉड, इंग्लिश में बहुत गलत हुआ है, 5 क्वेश्चंस गलत हुए, दैट इज़ वेरी वेरी ह्यूज। सो अब देखो, इसका ना सल्यूशन आएगा तभी हमको मालूम होगा कि हमने क्या गलती की है। मुझे लगता है कि जो मिस्टेक हुई होगी ना, वो पैराजम्बल की मुझे लग रही है, बट येस टाइमिंग वगैरह सब कुछ ठीक है। और मेरा जो टारगेट था इसको स्टार्ट करने पे, मेरा था 85 से 90 के बीच में, बट देखो 85 के बीच में तो नहीं आया, और 2 सेक्शन में 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए, वो भी नहीं आया, बट ठीक है, कोई नहीं। अब ये काफ़ी टाइम के बाद दिया है, अब एक बार रिवीजन करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे, तब उसको मैं शेयर करूँगी टेलीग्राम में, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना उसको, और आपका क्या स्कोर रहा है प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ओके, अब इसमें तो मैं शीट को एडजस्टमेंट करना भूल गई, आई एम सो सॉरी। अब नेक्स्ट वाले फिर से लेके आऊँगी ना मैं, उसके अंदर शीट जो है वो एडजस्ट कर दूँगी, तो डोंट वरी अबाउट इट। मेरी वॉइस से तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं ही हूँ। सो होपफुली आपका जो भी है प्लीज़ बताइएगा, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एंड फॉलो फॉर मोर। सो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।